بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان ٹائم میں حاضر ہے خلیل ساجن۔ السلام علیکم۔ ویسے تو دیکھا جائے بلوچستان کے ہر اضلاع میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ضرور ہیں، لیکن ان مسئلے مسائلوں کے درمیان کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو عام خاص ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم انہی مسئلے مسائلوں کو اجاگر کریں۔ آج سے 2 سال پہلے میں تقریباً کافی ایسے پروگرام تھے جو کوئٹہ کے فروٹ منڈی کے مناسبت سے تھے، کیونکہ کوئٹہ کا جو فروٹ منڈی ہے اس میں پچھلے 2 سالوں سے کئی مسئلے مسائل ابھرتے جا رہے ہیں۔ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے پا رہے ہیں۔ آیا ان مسئلے مسائلوں کو بنانے والا کون ہے؟ آیا ان مسئلے مسائلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ 2 سال مسلسل ہم آزار گنجی فروٹ منڈی سبزی منڈی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں ایسے کوئی بندہ ملا ہی نہیں ہے جو ثالث کا کردار ادا کرے، جو وہاں پر جو مسئلے مسائل ہے وہ حل کرے۔ بنیادی وہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ معاشہ خوران کے مسئلے مسائل ہے، فروٹ سبزی کمیشن ایجنٹس کے مسئلے مسائل ہے، تاجران کے مسئلے مسائل ہے۔ آیا ان کو حل کرنے میں محکمہ زراعت یا وہاں پر مارکیٹ کمیٹی ہے وہ کس طرح اپنا فرض سر انجام دے رہی ہیں؟ اتفاقاً کچھ دن پہلے میرا وہاں پر جانا ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہی مسئلے مسائل ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھے۔ تو میں نے کوشش یہی کی کہ میں اپنا آج کا پروگرام آزار گنجی کی مناسبت سے، فروٹ سبزی منڈی ہے اس کی مناسبت سے ہی کر لوں۔ میں نے وہاں پہ کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ کیا، وہاں پر معاشہ خوران کے جو صدر ہے اس سے میرا کنٹیکٹ ہو گیا، وہ باقاعدہ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ مرکزی انجمن تاجران جو تاجروں کی نمائندگی کرنے والے، ان میں سے بھی ہمیں ایک نمائندہ مل گیا۔ ہمارا کوشش یہی تھا کہ مجھے کوئی مارکیٹ کمیٹی کی یا وہ دوسرا فروٹ سبزی ایجنٹ کمیشن کی بھی مجھے کوئی بندہ ملے تاکہ میں اس کو بھی اسٹوڈیو پہ لا کر اس کا بھی باقاعدہ وہ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن کیونکہ کسی کا مجھے نمبر نہیں مل پایا اور اسی وجہ سے آج میں اپنے پروگرام میں ان 2 دوستوں کو مدعو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں اگر وقت نے ساتھ دیا تو پھر ان دوستوں کو بلائیں گے، ان کا انٹرویو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے کوئٹہ اتحاد معاشہ خوران کے صدر عصمت اللہ خان، اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا مہمان ہے مرکزی انجمن تاجران آزار گنجی زون کے جنرل سیکرٹری سید قدیم آغا۔ میں آپ دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں عصمت اللہ سے۔ عصمت اللہ بھائی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آزار گنجی میں وہ پچھلے 2 سال سے جو مسلسل کئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ابھی ان مسئلوں میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ؟ یہ تو پہلے تو ہم آپ میڈیا کے بڑے مشکور ہیں کہ ہمارے مین مسائل جو بھی مسائل تھے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیے۔ پھر ابھی ہم آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ 2 سال پہلے جو ڈی سی صاحب نے جو کارروائی کی، اس کے بعد آج تک نہ کوئی نہ منسٹر زراعت نہ مارکیٹ کمیٹی کوئی وہ کردار ادا نہیں کیا کہ ہم کاروباری حضرات وہاں پہ باعزت طریقے سے کاروبار کریں۔ ہاں، مین یہ ہے کہ اس نے ایک فائدہ یہ کیا کہ نیشنل کمیشن ایجنٹ نے اپنا کرایہ وصولی شروع کیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو مارکیٹ کمیٹی اس کا ایک انسپیکٹر ثالث صاحب اس کا نام ہے، وہ اکثر وقت ہمارے مشہور حضرت کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکس نہ جمع کریں، کیونکہ ٹیکس نہ جمع کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بس آپ فارغ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ڈی سی صاحب نے کارروائی کی، یہ ہم ایک بات ہم لوگ واضح کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی جو قانونی کارروائی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے، جو بھی قانونی کارروائی ہے ہم لوگ کاروباری حضرات یہ ہم 98 سے اس سے پہلے جو منڈیات تھے اس سے پہلے جو یہاں پہ ہمارے آبا و اجداد دادا وہ کاروبار کرے تھے، ہم اسی سٹیپ پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ کئی بار ہم لوگوں کے منسٹر زراعت سے میٹنگ ہوئی تو منسٹر زراعت کا وہ رویہ تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ کس طرح وہ رویہ کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آ گئے ڈی جی زراعت کے پاس، پھر مارکیٹ کمیٹی کے پاس۔ آج تک انہوں نے مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کا وہ نہیں کیا، تو یہاں تک وزارت جو آپ اس طرح بندے کو دیتے ہو کہ وہ
उस पे वो ना कार्रवाई कर सकते, ना कोई आगे लेके जा सकते। 2 साल गुजरने के बावजूद हम लोग यही ख्वार है, यही कारोबार, यही मुश्किलात है। और हम लोगों ने कई बार मिनिस्टर ज़राअत तो वज़ीर आला बलूचिस्तान को हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दी कि जो एक्शन ग्राउंड है फ्रूट एंड सब्ज़ी, एक्शन ग्राउंड 88 फुट, उस पर हम लोगों ने कहा कि उस एरिया पे आप निशान लगाएं। बेशक आगा जान, आपसे भी मैं यही सवाल जानना चाहूँगा, जो हज़ारगंजी में पिछले 2 साल से जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनमें कमी हुई है या इजाफा? ये सब्ज़ी मंडी का जो एक्शन ग्राउंड है उसकी मसाइल पहले से और भी बढ़ गया। इसकी वजूहत ये है कि सब्ज़ी मंडी में जो ज़राअत वालों ने एक्शन ग्राउंड दिया है और जो अलाटीज़ है जिसकी एक्शन के लिए सब्ज़ी फ्रूट बेचने के लिए एक्शन ग्राउंड दिया है वो ज़मींदारों का। इससे पहले जो अलाटीज़ थे उसको तो दुकानें दे दिया, और जिससे अभी झगड़ा चल रहा है एक्शन ग्राउंड पे, वो लोग ज़्यादा कारोबारी है, कारोबार कर रहे हैं, जिसके पास दुकान नहीं है, जिसके पास एक्शन ग्राउंड में फंड नहीं है। इसी वजह से ज़राअत वालों ने 1998 में इस यूनियन वालों से भी लाइसेंस जारी कर दिया गया और इसमें लाखों रुपया इससे ले लिया। और इसका मकसद ये था कि उसको यकीन दिलानी थी कि इसके बदले में आपकी एक्शन ग्राउंड बनाएंगे, आपके लिए दुकानें अलाट करेंगे और आप लोग हमारे अलाटीज़ हो और रजिस्टर हो। इसी वजह से आज तक वो ज़राअत वालों ने वो दुकानें दी है, ना एक्शन ग्राउंड बना के दिया है। इसी वजह से लड़ाई झगड़े रोज़ बरोज़ जो इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है। अच्छा असमतुल्लाह भाई, इन मसले मसाइलों को हल करने में महकमे ज़राअत की कारकर्दगी कैसा रहा है? कारकर्दगी जब वो अच्छी कारकर्दगी करते तो सबको ज़ाहिर आते, ये नहीं कि अकेले हम किसी की मुखालफत करते। मैं बजाते खुद हम हक़ाइक़ को छुपाते नहीं, हम हक़ाइक़ को बरानाम लाते हैं। मार्केट कमेटी के पास जब लोग हम अक्सर जाते तो वो अक्सर वक्त वो कहते हैं कि आप लोग जाके नेशनल कमीशन एजेंट को किराया दो। हत्ता हमारे पास सबूत भी है, वीडियोस भी है। वो कहते हैं कि आप उसके पास जाओ, मेड़ मरका करो। मार्केट कमेटी के जो चंद अफसरान वो कहते हैं, हत्ता कि डायरेक्टर ज़राअत ने भी मुझे ये बताया कि आप जाए मार्केट के नेशनल कमीशन एजेंट के साथ मेड़ मरका करो। यहाँ पे हमारे कोर्ट में भी केस चल रहा है। जो हमारे मेन इश्यूज़ है यहाँ पे, जो जितने भी वो इश्यूज़ है, हमारे मसले, हम लोग यहाँ पे करोड़ों की कारोबार कर रहे हैं, हमारे ऊपर करोड़ों के पैसे, हमारे किसी और के ऊपर करोड़ों के पैसे। यहाँ पे रूल्स है। मुल्क में 4 मंडियाँ है, 4 मेन मंडियाँ है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है। उन सब में एक रूल्स एक एक्ट है, यहाँ पे अलग है। किसने चेंज किए? मार्केट कमेटी, डायरेक्टर ज़राअत, और उसके साथ साथ अभी इस वक्त मिनिस्टर भी उसके साथ है। मिनिस्टर हमारे बात नहीं सुन रहे हैं ना, उसकी इस तरह रवैये पता नहीं है, हम ये समझ नहीं रहे कि वो हमारे साथ पार्टी की वो इख्तिलाफात कर रहे हैं, वो ज़ाती वो कर रहे हैं। कई बार हम उसके पास गए, वो कहते हैं कि अब आपके मेन इश्यूज़ ये बस हम तसल्ली से वो मंगवाते। 2 साल गुजरने के बावजूद वो अभी हमें तसलियाँ दे रहे कि हम तसल्ली से वो करें। और एक मेन बात में आता हूँ, CM साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब कमल साहब, उसने हमारे इश्यूज़ पे 4 रुकनी कमेटी बनाई। उसमें असगर खान असगज़ई था, ज़मरक के जो इस वक्त वज़ीर ज़राअत है ज़मरक था, दूसरा नुसरत खान ज़ेर पश्तूनख्वा पार्टी का था, चौथा मीर मोहम्मद सलीम कोसा साहब था, साबिक़ा वज़ीर दाखिला था। मगर आज तक ना उस पर ना कोई मीटिंग बुलाया, ना उस पर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई की। हाँ, ये फ़ायदा हमें पहुँचा है कि नेशनल कमीशन एजेंट को और भी इख्तियारात वो भी दिए और मार्केट कमेटी को भी इख्तियारात दिए। मार्केट कमेटी कहते हैं कि बस आप लोगों का जो मसला है वो 4 रुकनी कमेटी के पास है, CM साहब के पास। जी आगा जान, आप क्या कहते हो इस बारे में कि जो मसले मसाइल है जो महकमे ज़राअत है, आया उसकी कारकर्दगी कैसा है? आया जो मसले मसाइलों को हल करने में उसने अपना जहाँ पर क्या किरदार अदा किया है? वो तो सिर्फ तसलिया पे गुजारा कर रहा है। जो सूबाई वज़रा है, जिस वक्त भी पहले गवर्नमेंट है, अभी मौजूदा जो हमारे मिनिस्टर है ज़राअत की, वो भी इस यूनियन वाले को तसलिया दे रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है, सिर्फ तसली पे गुजारा कर रहा है।
अच्छा असमतुल्लाह भाई, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ अजहरगंजी में ताजर बिरादरी है, फ्रूट कमीशन एजेंट्स हैं, या इसके अलावा माशाखोरान है, इनके आपस में भी काफ़ी इख्तिलाफात है। आया इस इख्तिलाफात की असल वजह क्या है? क्यों एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात रख रहे हो आप लोग? यहाँ पे एक तो सालाना करीब मुसीबत यही है कि हर कोई आजकल जो ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल करे, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करे। मैं बजाते ख़ुद हमारे ख़िलाफ़ ही एक सोशल मीडिया पे कोई दूसरा एक उसके नाम से उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस तरह एक वीडियो बनाई है कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना बेशक मुल्क के जो भी इस तरह नेब है, इस तरह हमारे FIA जो भी हमारे ख़िलाफ़ वो बेशक कार्रवाई कर सकते हैं। हम कि हमारे ख़िलाफ़ 1 इंच भी या 1 पैसा भी किसी ने सबूत किया बेशक वो कार्रवाई कर सकते हैं। और आज ये जो आपने अच्छा सवाल किया, यहाँ पे हमारे मंडी में 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप है। 2 ग्रुप अपने वफाद के लिए लड़ रहे हैं, इसमें 2 ग्रुप जो है वो अपने इसी मकसद के लिए लड़ रहे कि यहाँ पे यही कारोबार बरकरार रहे। 2 ग्रुप ये कि एक तो नेशनल कमीशन एजेंट है, उसका जो मेन 258 प्लाट्स है कमीशन एजेंट है, वो अपने मनमानी के लिए उसने वो किया। एक वायद जो मशहूर कोयटा इत्तेहाद मशहूर है, ये नहीं मशहूर का जो पहले से लेकर आज तक उन्हें मशहूर के हर मुश्किल की उसका साथ दिया। मेन पॉइंट में एक बताना चाहता हूँ कि नेशनल कमीशन एजेंट का यहाँ पर एक ही मकसद है, उसकी जो 4 तरफ जो एक था 258 कमीशन एजेंट है, उन्हीं प्लाट्स के इस वक्त 25,000 फी फुट 25,000 चल रहा है। इस वक्त फी फुट 25,000 चल रहा है। और ये तो 2004 डायरेक्टर ज़राअत के मेहरबानी से उन्होंने उसको लीज दिया। डायरेक्टर ज़राअत में उसके नाम तो नहीं लेकिन उसके उहदा उसी टाइम सेक्रेटरी ज़राअत जनरल सेक्रेटरी था मार्केट कमेटी में। इस वक्त वो डायरेक्टर ज़राअत है। उन्हीं के मेहरबानी से, उन्हीं के तवसुत से यहाँ पे उसको लीज दी गई। अच्छा आका जान, आप हमें बताए, जैसे मैंने असमतुल्लाह भाई से भी यही मैंने पूछा कि जहाँ पर अजहरगंजी में जो ताजरान है या फ्रूट कमीशन एजेंट्स है या माशखोरान है, इनके भी आपस में काफ़ी इख्तिलाफात है। आया ये इख्तिलाफात की असल वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि यहाँ 2 यूनियन कम कर रहे हैं और मार्केट कमेटी वाले एक यूनियन की सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी दुकानें अलाट करके दे रहे हैं और मंडी में एक्शन ग्रुप तकसीम करके उसको दे रहे हैं और दुकानें अलाट करके उस ग्रुप को दिए। और जो दूसरा ग्रुप है उसका वो मुतालबा कर रहा है, वो बेचारे दरपदर हैं। हालांकि ज़्यादा कारोबारी जो है वही ग्रुप है जिसके पास दुकान नहीं है, एक्शन ग्रुप में इसका पड़ नहीं है, और ज़्यादा कारोबारी वही लोग हैं। और जो पहले मार्केट कमेटी वाली जिसकी सपोर्ट कर रहा है उसकी न कमीशन एजेंट का कोई काम है न कोई ताल्लुक है। उसने अपना दुकानें, अपना एक्शन ग्राउंड किराए पे दिए हुए हैं, लाखों रुपया किराया उससे वसूल कर रहे हैं माना। तो इस वजह से जिसके पास कारोबार है, उसके पास एक्शन ग्राउंड में पड़ नहीं है, उसके पास अलाटीज है मार्केट कमेटी का और इस लाइसेंस बना के दिए हुआ है, उसके बावजूद न एक्शन ग्राउंड में इसको हिस्सा दे रहे हैं और न दुकानें दे रहे हैं। ये वजूहात इस वजह से। असमतुल्लाह भाई, जाहिर सी बात है इन मसले मसाइलों को हल करने में जहाँ पर मार्केट कमेटी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मार्केट कमेटी वहाँ पर अपना टैक्स भी वसूल कर रहा है, बाकायदा इसको टैक्स भी मिल रहा है। जहाँ पर सब्जी मंडी में या फ्रूट मंडी में सबसे टैक्स भी ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर वो मसला हल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जहाँ पर अजहरगंजी में उसकी कारकर्दगी क्या है? क्या वो नेक नीयती के साथ जहाँ पर अपना काम कर रहा है? मार्केट कमेटी नेक नीति तो बाजार मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो नेक नीति कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार इस तरह सिंपल मैंने बताया कि आप लोग हमारे जो मशहूर कारोबारी हजरत है वो आपका हिस्सा है, हिक्ट में हिस्सा है, कानून में हिस्सा है। आप उसको इस तरह फेंकते हुए कि बस यही चीज़ नहीं। यहाँ पे मशहूर 300-400 बंदे, 300-400 बंदे, उसके पीछे 40-50 बंदे उसके घर है, उसके 40 हज़ारों की। जी हाँ जनाब, क्या कहते हो कि जहाँ पर मार्केट कमेटी अपना फराज नेक नियति से सरअंजाम दे रही है, वो तो सिर्फ ज़रूर है, क्योंकि वो इसमें दिलचस्पी नहीं है।
दोनों तरफ से वो टैक्स भी जमा कर रहा है मार्केट कमेटी के नाम से, जहाँ टैक्स की लगाए हुए किस्टन पे, सरियाब रोड पे, बाईपास की तरफ है। ये सारे कमेटी वो किसी ऑडिट नहीं हो रहा है इसका कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, जहाँ से आमदन आ रहा है, टैक्स आ रहा है, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। आपके सामने मंडी का कचरा, मंडी का बिजली, मंडी का वासा, ये इसकी जो मार्केट कमेटी के सामने जो दफ्तर है उससे भी किराया, उससे भी इसका जेब नहीं भरे, खजाना नहीं भरा, फंड नहीं भरा। उसके साथ जो हाल है आप भी देख रहे हैं कि सारे रेडियो वालों को भी किराया वसूल करके अपनी जेबों में तकसीम कर रहे हैं। इसका मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा असदुल्ला भाई, जहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि महकमे ज़राअत में कुछ अफसरों की तबादला हो रहा है, अगर हकीकत में जहाँ पर अफसरों की मतलब कुछ तबादला हो जाए तो क्या इससे सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा? ये तो हमने आज तक सुना नहीं है, आपने बताया तो खुशी की बात है, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक 20 साल 21 साल हो रहे, एक मुलाजिम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मैं उसकी वजह आपको बताना चाहता हूँ। जो आज इस वक्त इंस्पेक्टर है साले साहब, साले बड़े, वो 20-25 साल उसका यदि मुलाजमत है। एक बंदा वो यहाँ पे आता कि डायरेक्टर ज़राअत से लेकर यहाँ तक वही पुराने अफसर से, वही पुराने अफसर से जो 2004 में उन्होंने मीटिंग की थी, उन्होंने उसका लीज दी थी, वही पुराने अफसर। ये तो बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, ट्रांसफ़र करे, जो ईमानदार अफसर इस पे आ जाए। अब ईमानदार अफसर हमारे लिए हमारे मसले, सबके मसले इंशाल्लाह वो हल कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी उसका वो गरज नहीं है। यहाँ पे तो इस जो पुराने अफसर होते हैं वो तो अपने वफात के लिए बैठे, यहाँ पे 12 बजे 11 बजे पहुँचते, 3-2 बजे निकलते बस। जी आगा जान, आप क्या कहते हो इस बारे में? अगर महकमे ज़राअत में कुछ अफसरों की तबादला अगर हो भी जाए, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों की हो रहे हैं, अगर इन लोगों में से कुछ लोगों की अगर जहाँ पे तबादला हो गए, जहाँ पर नए लोग आ गए, तो क्या जहाँ पर सब्जी मंडी में या फ्रूट मंडी में कोई तब्दीली आएगा? कोई फायदा नहीं होएगा। जो भी आएगा वो हिसाब से चल रहे। 1998 से जब मंडी शिफ्टिंग हुआ है, सबसे पहले अजहरगंजी में मंडी शिफ्ट हुआ, उस वक्त सूबाई हुकूमत इसके साथ मुखलिस था, लेकिन उसने अमल दरामद भी किया, ट्रक आड़ा भी इसने शिफ्ट किया, सब्जी मंडी भी शिफ्ट किया। और आज जो बस अड्डे की नाकामी का वजह है वो भी सूबाई हुकूमत की वजह से। जो मिनिस्टर है, जो हमारे यहाँ की MNA है, MP है, उससे हम अपील करते हैं कि अड्डे की जहाँ से या मनी अड्डे बने हुए, ये सरियाब रोड पे बने हुए, मुसा कॉलोनी पे बने हुए, और ये बाईपास पे बने हुए, जबल नूर पे बने हुए, तो हम अपना MNA और MP से भी अपील करते हैं, सूबाई हुकूमत से भी अपील करते हैं, जैसे ट्रक आड़ा और सब्जी मंडी शिफ्ट हुआ, आज भी इखलास के साथ मुखलिस बन करके यहाँ की जितना ताजर है वो अपनी मदद, अपनी तैयत को, बस अड्डे को कामयाब कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं। हम अपील करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसमें एक्शन ले। आज जो चीफ सेक्रेटरी आया है, फजील साहब है, लेकिन मुझसे भी हमारी गुजारिश है, अपील है पुरजोर कि अड्डे में खुसूसी दिलचस्पी ले कि यहाँ की ताजरों की जितना पैसे है वो यहाँ आबाद हो जाए, सारा अड्डे शिफ्ट हो जाए, तो खुद ब खुद जो है, जैसे ट्रक आड़ा कामयाब है, सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी कामयाब है, उस बस अड्डे की नजाडों को ख़त्म करने से बस अड्डा भी ऐसे कामयाब हो सकता है। जी, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर आप लोग हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी क्वेटा इत्तेहाद माशाखोरान के सदर असमतुल्लाह का, और इसके अलावा हमारे दूसरा मेहमान था मरकज़ी अंजुमन ताजरान अज़हरगंजी जोन के जनरल सेक्रेटरी सैयद खदीम आगा की, जो अज़हरगंजी के मुख्तलिफ मसले मसाइलों के ऊपर हमारे गुफ्तगू जारी थी। जैसे मैंने शुरू में भी यही कहा कि मेरा कोशिश यही था कि मैं इस प्रोग्राम में कोई फ्रूट कमीशन एजेंट्स का भी एक नुमाइंदा जहाँ पर ले आऊँ, उनकी भी बातें सुनूँ या आप लोगों तक पहुँचो, लेकिन इत्तेफाकन उन लोगों में से किसी के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि सिर्फ हम वन साइडेड दिखा रहे हैं या कुछ लोगों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं या कुछ लोगों को दिखा रहे हैं। कतन हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है।
ہمارا ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ جو مسئلے مسائل ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو مسئلے مسائل حل ہو سکے، کیونکہ جو اتحاد معاشرہ خوران کے صدر تھے عصمت اللہ نے ایک اچھی سی بات کی کہ یہاں پر صرف کچھ لوگوں کی وہ باتیں نہیں ہیں، ایک بندے کے پیچھے اس کا پورا فیملی ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی کا جو روزی روٹی ہے وہ یہاں سے وہ کما کر لے جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے یا ہمارے پروگرام کی وجہ سے یا ہمارے باتوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو یا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلے مسائل کریٹ ہو، تو قطعاً ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، وہ حکام بالا تک پہنچانا ہے، وزیر اعلیٰ تک پہنچانا ہے، منسٹر زراعت تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ ان مسئلے مسائلوں کا بہتر طریقے سے حل نکال سکے۔ 2 سال ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو کوئی پتہ نہیں ہے، 2 سال ہو رہا ہے کہ منسٹر زراعت کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے عصمت اللہ نے کہا کہ کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن کمیٹی کی کارکردگی کیا ہے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ کمیٹی کا کارکردگی ہے وہ 0 پر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی مسئلے مسائل جب بھی کریٹ ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آ جائے وہاں پر، سب فریقین سے ملے، ان لوگوں کی مشاورت سے جو مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں اسی طریقے سے مسئلے مسائل آپ حل کریں، کیونکہ جتنے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں پھر وہ ان میں سے پیچیدگیاں اختیار کرتے ہیں۔ تو مسئلوں کو پیچیدہ مت بناؤ، آپ لوگ مسئلوں کو حل کرو۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں پھر ایسے کسی پروگرام میں ایسے دوستوں کے ساتھ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس پروگرام تک کے لیے خلیل ساجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔